ایک گائے تھی میرے پاس جو میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، میں نے بیچ کر وہ بیٹی کے اوپر لگائی ہے۔ نہیں، وہ جو گائے آپ نے گائے رکھی تھی وہ اس لیے رکھی تھی کہ بچی کو بچی کے لیے رکھی تھی کہ اس کی شادی کرواؤں گی۔ اچھا، تو وہ بچی بھی نہ ٹھیک ہوئی، اچھا، تو گائے بھی بک گئی، پیسے بھی لگ گئے۔ ابھی اس بچی کو شادی کر کے دیا، سب کو منت ماجری کی کہ میرے ساتھ مدد کرو، لیکن میری مدد کسی نے بھی نہیں کی۔ تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی کہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 جولائی 2023 ہے اور میں رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک جیز کی خریداری کرنے کے لیے میں آیا ہوں راجہ بازار میں۔ تو یہ جیز میں نے انشاءاللہ بفضل خدا مظفر آباد کا ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پہ میں نے دینا ہے آزاد کشمیر میں۔ تو میں جیسا کہ اپنے گھر کے لیے انسان چیزیں خریداری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھی چیز جیسا اپنے گھر کے لیے لیتا ہے، یا کسی شادی بیاہ پہ اپنی بیٹی کے لیے یا بانجی کے لیے یا بہن کے لیے، واللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں حالانکہ 100 میں سے 99% میں اپنے ذاتی جیب سے یہ کام کرتا ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی چیزیں دوں جو اپنے میں گھر کے لیے، اپنی بہن کے لیے، بانجی کے لیے، بیٹی کے لیے لینی پسند کرتا ہوں، وہی چیزیں میں خریداری کرتا ہوں۔ مت ہونا خدا واقف ہے، ناظر بھی خدا ظاہر ہے، باطن بھی وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر۔ ناظرین، یہ راجہ بازار میں ان کی ہول سیل دکان ہے، تو الطاف صاحب ان کے والد صاحب ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ یہ بہت شوق رکھتا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ کام مناسب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت کے اندھیروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جیز کی خریداری کر رہا ہوں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ راجہ بازار کے اکثر دکاندار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، شاید وہ میرے ساتھ مناسب کر لیتے ہیں ویلفیئر کی وجہ سے، لیکن یہ بھائی نے تو نام کیا بھائی؟ ذیشان شیخ ذیشان بھائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے نہایت ہی میرے ساتھ بھی مناسب کیا ہے، بیٹی اور 3 چیزیں انہوں نے دی ہیں۔ میں تمہیں گرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ اللہ مولا کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پلڑوں میں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت
मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह मौला वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, हाँ वो देख रहता है। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 11 जुलाई 2023 है और आज हम रईस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक फ्लाई प्रोग्राम करने के लिए जैज़ का प्रोग्राम है मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मरी पहुँचे हैं। मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, दरीदा दामनों को वो रफू करता है रहमत से, अगर कशकोल टूटा। अभी हमने क्वाला पुल क्रॉस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में दाखिल हो गए। पाकिस्तान पूरा हमारा अपना है। मैं यकसा मोहब्बत करता हूँ तमाम मुसलमानों के साथ। कश्मीर है, पंजाब है, पाकिस्तान जो भी है, KPK है, हो तो वो भरता है नेमत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये स्ट्रगल आपके सामने है। 4 घंटे हो गए हमें सफ़र में। पिकअप पे हम आए हैं आज। गाँव के पीछे सामान हमने इसमें लोड किया हुआ है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए दूसरों के लिए। ज़िंदगी जब आप बसर करनी पसंद करते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। कभी अय्यूब की खातिर ज़मीं चश्मा उबलती है, कहीं यूनस के हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस जगह पे हमने पहुंचना है, मंजिल तो बहुत नज़दीक है, लेकिन ये गाड़ी चढ़ाई बहुत सख्त चढ़ाई है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम दे रही है। पर अगर फरियाद उठती है, अगर फरियाद उठती है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह मौला तुम्हारे दिल की टीसों को यूं ही दुखने नहीं देगा, तमन्ना का दिया यारो कभी बुझने नहीं देगा, कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा, कहीं थमने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। जब उसके रहम का सागर छलक के जोश खाता है, कहर ढाता हुआ सूरज यकायक कांप जाता है। हवा कि ये जिस तरह का ये पैगाम दे रहे हैं, और उनकी गली कुचू में भी लिहाज से लोग मौजूद हैं। ये हमारी बेटी के लिए लेके आए हैं यहाँ पर। हमें बहुत खुशी और मुसर बहुत जी आज आपने जो कुछ किया है बहुत खूब किया है।
चलें जी, दिल आप हो गया, आपको देख कर समान तो बात है, आपको देख कर आप दिल हो गया। कोई हम हमने उठती है लहरा कर, घटा सजदे में गिरती है, जहाँ धरती तरसती है वही रहमत बरसती है, वही रहमत बरसती है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 11 जुलाई 2023 है और मैं रईस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में अभी मौजूद हूँ। वहाँ का एक पसमानदा तरीन इलाका है, तो यहाँ पे एक बच्ची को मैं जेज़ देने आया हूँ। अल्लाह ताला ये मेरी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो हमारी एक बहन है आजरा, जो कि रावलपिंडी लालाजार में रैश पजीर है, वो एक दिन मेरे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ 16,000 रुपया दिया था। उन्होंने कहा रईस भाई ये मेरी तरफ से फाउंडेशन में डाल देना। तो मैंने उस बहन के साथ एक वादा किया था कि ये पैसे मैं आपके ऐसी जगह पे लगाऊंगा कि देर तक इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको देंगे, क्योंकि चीज़ ऐसी दूंगा कि जितना टाइम वो इस्तेमाल होगी उसका अजर आपको मिलेगा। आप जब भी किसी के साथ कोई सपोर्ट करें तो सपोर्ट आपने ऐसे बंदे को करनी है कि जिसको आप चीज़ दें बगैर चीज़ नज़र आनी चाहिए। हमारे मुल्क में इसी चीज़ का एक फुकदान है कि लोग बाज़ औक़ात सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन लोग पैसे लेके काम नहीं करते। ये काम मैं 100 में से 99% में अकेले सर पे मैं अपनी फाउंडेशन चलाता हूँ। हाँ, अगर कोई बीच में आ जाए, वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि मैं अगर 100 बच्चियों को मैं जेज़ दे सकता हूँ, अगर मेरे साथ चंद हाथ मिल जाते हैं तो मैं 100, 200, 500 हज़ार बच्चियों को भी दे सकता हूँ। और हमारे मुल्क में इतनी मुश्किलात हैं क्योंकि मेरे जैसे बंदे को आपको बेहतरीन तहकीक के साथ आपको मालूमात मिलेगी, क्योंकि मैं कमज़ोर लोगों के पास जाता हूँ और पसमानदा इलाकों में जाता हूँ जहाँ पे कोई ज़रिया माश नहीं है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कितना टाइम हो जाता है बच्चियों की मंगनी करते हैं, उसके बाद उनके पास कोई वसाइल नहीं होते हैं कि बच्ची को घर से बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करें। और कोई माँ ये नहीं चाहती कि मैं बग़ैर कुछ दिए अपनी बच्ची को घर से रुखसत करूँ। तो इसी तरह ये बहनें मेरे पास बैठी हैं, तो इनसे मैं आपके सामने सवाल करूंगा कि इनकी क्या क्या मुश्किलात थी। अल्लाह ताला ये मेरा किया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? ठीक, अब ठीक है, अल्लाह का करम है। तो सुनाएं क्या क्या मुश्किलात थी मेरी सर ये मुश्किलात थी कि मेरी बेटी के एंगेजमेंट को 7 साल हो गए थे। अच्छा, एक गाय थी मेरे पास जो मेरी बेटी बीमार हो गई है, मैंने बेचकर वो बेटी के ऊपर लगाई है। नहीं, वो जो गाय आपने गाय रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि बच्ची को बच्ची के लिए रखी थी कि उसकी शादी करवाऊंगी। अच्छा, तो वो बच्ची भी ना ठीक हुई। अच्छा, तो गाय भी बिक गई, पैसे भी लग गए। अभी इस बच्ची को शादी करके दिया, सबको मिन्नत माजरी की कि मेरे साथ मदद करो, लेकिन मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। अल्लाह से अलावा मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। तो आप फिर मुझ तक कैसी पहुंची हैं? आपके देखा है तो आप तक वीडियो देखी है? वीडियो देखी है, उस तक आप तक पहुंची। अच्छा। लेकिन चलें जी, ये हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। वीडियो बस इसीलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख के इससे सबक हासिल करें और इसी तरह कमज़ोर लोगों की मदद करें। चलें, ये जो मैंने किया है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत किया है। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं जी। तो ये जितने भी कश्मीर के या कश्मीर के लोग जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी यही मेरा मैसेज है कि मैं अगर पंजाब से आके, तो मैं एक अदना सा इंसान होने के नाते मैं आपके लोगों के साथ इतना मैं प्यार करता हूँ, आपकी बच्चियों के साथ मेरी इतनी हमदर्दी है, तो फिर आपको भी चाहिए अपने इलाके में अगर अल्लाह ताला का आपको दिया हुआ है, ज़रूरत के अलावा आपके पास है, तो फिर आप कोशिश करें, अपने इलाके में गौर करें। और मैं जैसा कि यकसा मोहब्बत करता हूँ, चाहे पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KPK है, कश्मीर है, ये हम सब आपस में मुसलमान भाई हैं। जो साहब प्राइम मिनिस्टर जनाब तनवीर इलियास साहब हैं, वो ख़ुद एक दिन कह रहे थे कि मुझसे सियासियों ने काफ़ी करोड़ों में फंडिंग ली है। तो
یہ تو ایک دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے. تو آپ کے اپنے علاقے میں یہ حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس میں کہتا ہوں 50,000 روپیہ نہیں ہوتا بچی رخصت کرنے کے لیے. انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہمارے پاس 2 کپڑوں کے جوڑے یا ہمارے پاس صرف ایک بیڈ شیٹ ہے. تو میں یہی میسج دوں گا کہ آپ کوشش کریں اور سروے کروا کے ایسی بچیوں کی رجسٹریشن کریں اور ان کے ساتھ آپ بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. وما علینا الا البلاغ. بہت مہربانی شکریہ جی. تساں پورا سائیں بچی جے دیتا اتنا کوئی بھی نہیں کرنا. سو اتنا دوروں آئے سو تکلیف اٹھائی. نہیں تو بہت مہربانی شکریہ. کوئی ایسی گل کوئی ایسی گل نہیں. اساں اپنی بچی آسانی نہ رخصت کر سکتے ہیں. چلو جی آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہو سکے اسی انشاءاللہ کرساں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی بزرگوں پھر مولا ترس تیرے گزاروں پر ابر بہہ کے ہی رہتا ہے. نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے.